بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسایا پیر کامل کاملانہ رہنما سجدہ نہ سمجھ صاحب سر دیتا ہوں نذرانہ. تو آپ اگر آپ کسی بزرگ کو جھک کے ملتے ہیں اس کا ہاتھ چومتے ہیں تو آپ حتماً اس کا احترام کر رہے ہیں. کسایا پیر کامل کاملانہ رہنما. ایک لاہور دی گل نہیں ہے تے ہر پاسے دیوانے نے ساری کائنات دے وچ میرے داتا دے دیوانے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اٹھو پاکستان کے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حمزہ ساجدہ حاضر ہے. آج آپ کو پتہ ہم داتا کی نگری لاہور میں موجود ہیں. داتا صاحب کا عرس ہے. ایک بہت ہی مشہور روحانی شخصیت سید علی اجمیری افغانستان سے آ کے ہند کی سرزمین کو مسلمانوں کی جسا کہتے ہیں نا ایک امپروو ہسٹری کے لیے ایک مشہور جگہ ہے, انہوں نے آگے یہاں پہ اسلام پھیلایا. ایک بالکل ہندوؤں کا گڑھ تھا یہ اندرون لاہور. 10-10 20-20 لاکھ لوگوں کو اسلام قبول کرایا. آپ اگر دیکھیں کس قدر مجمع ہمارے یہاں پہ جمع غفیر ہے. عرس مبارک کے لیے یہاں پہ زائرین آئے ہوئے ہیں. ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے, لوگوں سے پوچھیں گے ان کی تعلیمات کا آپ پہ کیا اثر ہے. کیا صرف آپ یہاں پہ دمال ڈالنے یا کھانا کھانے ہی آئے ہیں, یا کوئی نیکی کا درس بھی لے کے جائیں گے, یا اپنے علاقوں کے لیے کچھ بھی لے کے جائیں گے. تو ہم بات کریں گے اب لوگوں سے جانتے ہیں. یہاں پہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے. السلام علیکم سر. السلام. سر آپ کا گڈ نیم؟ محمد عرفان قادری. عرفان صاحب, میرے پاس تو الفاظ نہیں لوگوں کا رش دیکھ کے. آپ ذرا بتائیں داتا صاحب کی تعلیمات, سید علی اجمیری, کشف المحجوب, ایسی بک جس کے اندر کہتے ہیں نا پورا روحانیت کا سیلاب ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا حضور داتا گنج بخش علی اجمیری یہ لاہور کی جو 1000 سال پرانی تاریخ ہے, اور آج داتا حضور کا 980واں سالانہ عرس مبارک ہو رہا ہے جس کی آج آخری ترکیبات جاری ہیں. تو داتا حضور نے کشف المحجوب میں وہ تمام نچوڑ لکھا. آپ سرکار نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا, 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا. یہ لاہور جو ہندو کا گڑھ تھا اور یہاں پر ہندو کا راج تھا, اور یہاں پر گورنر جو شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے پہلے جو خلیفہ بنے وہ آپ کے پہلو میں سو رہے ہیں. سب سے پہلے دستے مبارک انہوں نے آپ کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا. وہ یہاں پر گورنر پنجاب تھے لاہور کے. سر مجھے کلیئر کریے گا, وہ بھی ہندو تھے؟ وہ بھی ہندو تھے. وہ ہندو تھے. سرکار نے پھر ان کو بیعت کروایا. بیعت کروانے کے بعد ان کا نام شیخ ہندی رحمۃ اللہ کے نام سے مشہور ہوئے, اور آج وہ سرکار کے اپنا شیخ ہندی اور شیخ لطفی رحمۃ اللہ دونوں سرکار کے پہلو میں سو رہے ہیں. تو داتا سرکار نے میں خالی یہاں پر یہ نہیں کہ لوگ آئیں دمال ڈالیں لنگر کھائیں چلے جائیں, 5 وقت کی نماز اور دین کے بارے میں بتایا کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, اور لوگوں کو یہ تعلیمات دی کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں, دین کے اوپر پیرامل ہوں, اور یہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں اور اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کریں. سر جس طرح آپ کافی مجھے انفارمیٹیو لگ رہے ہیں, ظاہر سی بات آپ کسی سلسلے سے بیعت ہے؟ میں سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوں. حضور غوث پاک کا مرید ہوں. میں پیر انور شاہ گیلانی سیدرا شریف ڈیرہ اسماعیل خان, اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں, اور میں ہر سال یہاں پہ آتا ہوں حاضری دیں اور داتا حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں کہ داتا حضور نے کیا فرمایا ہے. تو کشف المحجوب جو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, آپ سرکار نے فرمایا کہ کشف المحجوب میں آپ نے تمام وہ چیزیں بیان کر دی جو آپ کی زندگی کا ایک ازمودہ اور آپ نے جس پہ وہ عمل کیا, نچوڑ تھا سارا. کشف المحجوب میں یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک کی جگہ شرک نہیں ہے. داتا حضور تو شرک کو ختم کرنے آئے تھے. آج مجھے آپ ایک بندہ کسی عیسائی کو کلمہ پڑھا کے دکھا دے, کسی عیسائی کو دکھا دے, ایک مسلمان بندہ کسی غیر مسلم کو مذہب کو کلمہ پڑھا کر 90 لاکھ مسلمانوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا. اچھا سر مجھے تھوڑا سا کریکٹ کریں, کچھ لوگ درباروں پہ آگے ڈفرینٹ قسم کی ایسی حرکات کرتے ہیں جو کہ اسلام کی صحیح روح سے متقاضی نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی علم کی کمی ہے یا ہم لوگوں کی سوچ, چونکہ ہم ایک ہندو کنورٹڈ مسلم سوسائٹی ہیں, یہ وجہ؟ اصل میں وہ جو لوگ درباروں پہ آگے ایسی حرکات کرتے ہیں جس سے دین کا ایک غلط میسیج لوگوں کو جائے, وہ شر پسند لوگ ہوتے ہیں جن کا درباروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنا حلیہ بگاڑ کے, اب یہاں پہ اتنے لوگ پھر رہے ہیں, کوئی بھی ٹوپی رکھ کے سبز امامہ رکھ کے آ جائے, لیکن اس کا کسی کو تعلق نہیں یہاں پر. صرف وہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو گندہ کرنے کے لیے, اور درباروں کا جو ہے نا وہ ایک میسیج کنوے جو ہوتا ہے لوگوں کو, یار جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ درباروں پہ آگے لوگ سجدہ کرتے ہیں, سجدہ نہیں کرتے. ان لوگوں نے داتا حضور نے تو آگے شرک کو ختم کیا ہے. وہ کون سے لوگوں جو کہتا ہے کہ یہاں پہ شرک ہوتا ہے؟ وہ ایک نعت کا ایک مفہوم ہے, سجدہ نہ سمجھ صاحب سر دیتا ہوں نذرانہ. تو آپ اگر آپ کسی بزرگ کو جھک کے ملتے ہیں, اس کا ہاتھ چومتے ہیں, تو آپ ادباً اس کا احترام کر رہے ہیں. تو یہ غلط میسیج بالکل کنوے نہ کیا جائے. ایسے اگر لوگ آتے ہیں یہاں پر اور وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے.
माशाल्लाह बिल्कुल हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमें दीन और इस्लाम सिखाया। कुफर की ये जो लाहौर शहर था ये कुफर की कशमकश में था। जब आप तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाकर यहाँ जब आपने अपना डेरा लगाया रावी के कंडे के ऊपर, तो उस वक्त फिर आहिस्ता 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 लोगों को इस्लाम की तरफ दावत दी, तो माशाल्लाह फिर अक्सर होते 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 यहाँ इस्लाम फैल गया। अच्छा, दूसरी मुझे चीज़ बताएं, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए कि आज के असर हाजिर के जो दौरे हाजिर है उसके मतकाजी क्या इधर से क्या लेके जाए? मैं मानता हूँ यहाँ पे रूहानियत है, सारा कुछ है, लेकिन दौरे हाजिर की क्या तालीमात है जो दाता साहब की आज दौरे हाजिर में भी हमारे लिए जैसे कहते हैं एक फ़ायदेमंद या सूदमंद साबित होंगे? तो इसके हवाले से जवाब ये है कि देखिए दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमें किसी भी खराफात के अंदर जाने का हुक्म नहीं दिया, ना ये डोल डमका ना ये इस तरह का किसी काम दाता साहब ने ना किया है और ना किसी को हुक्म दिया है। उर्स को जो बेसिक तकाजा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ आकर सबसे पहले तो तिलावत कुरान करनी चाहिए। तिलावत कुरान करने के बाद जो साहिब मज़ार हैं उनको भी पेश करनी चाहिए, फौत शुदागान को पेश करनी चाहिए। सबसे पहला काम तो हमारा ये है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से मांगने का ये ज़रिया है कि अल्लाह तबारक व तआला से हम इनके सदक़े से मांगे, इनके वसीले से मांगे, क्योंकि ऐसी जो शख्सियात होती हैं अल्लाह तबारक व तआला की बरगुज़ीदा जो शख्सियात होती हैं उनके तवस्सुल से, उनके वसीले से मांगने से अल्लाह तबारक व तआला देता है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, शिफा तो यकीनन अल्लाह ताला ही देता है, अल्लाह के अलावा तो कोई शिफा नहीं देता, लेकिन वसीला जो है वो डॉक्टर बन जाता है। तो इसी तरह ये अल्लाह के जो वली होते हैं ये हमें जो है हमारे दिल के लिए डॉक्टर का काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक मेन गेट है दाता साहब का जैसे एंट्रेंस होती है। आप ज़ायरीन की भरपूर तादाद देख रहे हैं, जो उन्होंने इल्म दिया, जो उन्होंने इस्तकामत दी, लोगों को बताया कि अल्लाह की वहदानियत क्या है। मुझे ऐसे लगता है लोग उससे हट के सिर्फ तफरीह की खातिर ज़्यादातर यहाँ पे आपको लोग नज़र आएंगे। मोस्टली लोगों के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई, मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई दीनी जज्बे के साथ आए। एक सैर व तफरीह का माहौल मुझे लग रहा है। लोगों से कुछ पूछा, कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि ये जो एक देखा जाए एक जो अंदर कुछ लोग गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं या खुराफात करते हैं, उससे इस जगह कोई ताल्लुक़ नहीं। ये जगह खालिस्तन दीन का मरकज़ है, लोगों तक दीन की वजह पहुँचाने की, दीन की समझ पहुँचाने की जगह है। और जो बुजुर्ग अंदर मदफन है वो उनके वसीले से मांगते, ना कि उन्हें सजदा करते। इस बात को हम मीडिया के तवज्जुह से इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि कई जगहों पर ये गलतुल आम बात मशहूर है कि लोग वहाँ पे जाके मुशरिकाना हरकतें करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं उनके वसीले से मांगने आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे की परेशानियाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, तो वो मुरादों के ज़रिए अपने सिलसिले को पूरा करते। बिल्कुल इसके मुताबिक अल्फाज, बिल्कुल हमारे पास इतने बड़े अल्फाज नहीं है, हम कुछ बयान नहीं कर सकते। इतनी बड़ी हस्ती है। कल रात को आप यहाँ पे देखते पैर रखने की जगह नहीं थी, यकीन माने हाजिर हुई है, दिल खुश हो गया। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, हमें पूरी रात का पता नहीं लगा किस टाइम फजर हुई है, दिन निकल आया है। ऐसा लगता था कि अभी सोए भी नहीं है और सुबह हो गई है। इतनी बड़ी हस्ती है माशाल्लाह। हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, इस दाता की नगरी में हमारी हाज़िरी हुई है। अल्लाह पाक ने हमें शर्फ बख्शा है कि हम यहाँ हाजिर हुए इनके उस शरीफ पे। सर अगर वो इस तरह की रूहानियत को नहीं समझते ना, फिर उनके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाज़िरी का मकसद ही जब ना हो तो फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अकीदत की बात है सारी। जो अकीदत से आता है उसको मिल जाता है, जो अकीदत से नहीं आता वो खो के चला जाता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पे है। अगर नियत ही ठीक नहीं होगी तो बाकी इसके पीछे फिर बचा ही गया है। अच्छा सर, आज के दौर के हिसाब से जिस तरह आपको पता है महंगाई है, बेरोज़गारी, लोग बहुत परेशान हैं, तो ये जो दरसगाह है या ये जो आप कह लें एक पूरी दरगाह है, ये क्या दर्स देती है लोगों को? सर ये इस्लामियात का दर्ज देती है। हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है। इन लोगों ने सारी ज़िंदगी इस्लाम की खातिर वक्फ़ कर दी। आज इनका इतना बड़ा मकाम है, किस लिए है? इन्होंने खिदमत की है इस्लाम की, और हम लोग आज खिदमत की बजाय सिर्फ किसी और चक्कर में लगे हुए हैं। ज़ाहिर बात है, जो कुछ अक्सर लोग आते हैं यहाँ पे इनकी तालीमात की वजह से नहीं आता। अक्सर लोग आते हैं जी लंगर मिल जाएगा, यूँ हो जाएगा, लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें करते हुए। इतनी बड़ी हस्ती है, इनका तो खाली हमें हाजिर नसीब हो जी, ये भी बहुत बड़ी बात है। बस दाता हुजूर ने हमें उन सफ़ों में खड़ा कर दिया जिन सफ़ों में ख्वाजा अजमेर शरीफ ने को खड़ा किया था। दाता साहब ने हमें उन सफ़ों में, जिन सफ़ों में बाबा फरीदगंज शक्कर, ऐसी ऐसी हस्तियाँ, और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम आके उन सफ़ों पे खड़े हो गए हैं। और ये हमारी अकीदत है और मोहब्बत है दाता हुजूर से। तो इंशाअल्लाह जब तक सांस है हम आते रहेंगे। एक लाहौर दी गल नहीं
है ते हर पासे दीवाने ने सारी कायनात दे विच मेरे दाता दे दीवाने ने मैनू लगदा है सारा मैनू लगदा है सारा संसार अली अजवेरी दा जद्दी पुश्ती मंगता सरकार अली अजवेरी दा मेरे दिल विच क्यों ना वसे प्यार अली अजवेरी दा जद्दी पुश्ती मंगता सरकार अली अजवेरी दा। मेरे पीछे देख सकते हैं अवाम का एक जमे गफीर मौजूद है। ये दूध की सबील है, कहा यह जाता है ये दूध शिफा वाला है, कुछ लोग ये भी कहते हैं ये लजीज बहुत है इसलिए लोग आते हैं। कुछ एक और, अब जिस तरह महंगाई का दौर है, दूध एक महंगी कमोडिटी हो गई है। आप लोगों को देख सकते हैं लोग आपस में टकरा रहे हैं, ऐसे लगता है जिस तरह जन्नत के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, किसी को किसी चीज़ का होश नहीं है। अवाम की एक बड़ी तादाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ जो गवाले हैं दूध बेचने वाले, उन्होंने यहाँ पे सबीलें लगाते हैं हर साल, और ये साल से सिलसिला जारी है। आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, उधर से लेके इधर आखिर तक लोग ही लोग हैं। ये दाता का लंगर है, हर साल ऐसे ही होता है, इससे बड़ा काम होता है। ये लंगर चल रहा है हमारा 24 घंटे, लंगर चल रहा है हमारा 24 घंटे इंशाअल्लाह। अल्लाह कम करना है। देखिए ना पीछे, आप पूरे कमरे में को दिखाए ना। कोई लोगों में कमी आती है कभी? नहीं बढ़ता ही है काम, करता नहीं है काम। और खाने में कोई कमी? नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर हमारी कौन सी अवाम है ना, उसको लेने का पता ही नहीं है। ये देखे ना आप, दूध की शबील में देख ले, ये इन्होंने इंतजामिया ने इतना पैसा लगाया है, इतना कुछ करते हैं, हर साल करते हैं। ये देखे पीछे देखे औरतें क्या कर रही है, उनको तमीज़ ही नहीं है लंगर कैसे लेना है। ये सरकार क्या वजह, हमारी कौम में बिल्कुल अकल शऊर की कमी हो गई। आप ऐसा साईं बताएं, आपने माशाल्लाह मन के गाने पहने। हम लोगों को जो है ना माशाल्लाह मुसलमान नाम के ही रह गए हैं। हमारे समझ लें 100 से 10% कौन से अच्छे आदमी कौन से पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को इस चीज़ का पता है। ज़्यादा हमारी अवाम कौन सी गुर्बत के लिए बदतमीज़, ये देखे औरतों के साथ लड़के छोटियाँ भी पा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। ये समझ ले लंगर में शिफा भी है, तो समझ ले गुर्बत भी है। उसका इख्तितामी रोज़ है। आज हम सारा दिन इसी जगह को कवर करते रहे, ज़ायरीन से पूछा, लोगों से मसाइल पूछे, इस जगह को कवर किया। अंदर के मामलात हम आपको किसी वजह की वजह से नहीं दिखा सके, क्योंकि एक तो यहाँ पे रश बहुत है, दूसरा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स की वजह से हमें अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं मिल सकी। हालांकि मीडिया के लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैं अपील करूँगा कि मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। दूसरा, मैं यहाँ पे देखा है लोग खाने पीने की, जिसे कहते हैं नज़्म ज़ब्त का कोई मुजाहरा नहीं कर रहे, लेकिन मैंने लोगों में जिसे कहते हैं मजहबी इत्तेहाद व यगानियत जज्बा वो बहुत देखा है। यहाँ पे कुछ लोग हमें ढोल पे धमाल डालते हुए नजर आए, कुछ लोग यहाँ पे खुशियाँ मनाते नजर आए, कुछ लोग इसको मेले की तरह जिसे कहते हैं ना एक एंजॉय करते नजर आए। लेकिन कई लोगों ने हमें यहाँ पे कहा कि हम यहाँ पे सूफीज़म को सीखने आए हैं, हम यहाँ पे तसव्वुफ़ की तालीम देने आए हैं। कैमरामैन मुगीस अहमद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दे दीजिए। बहुत शुक्रिया।